السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آج ہم جو قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں یہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کو کون نہیں جانتا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے بزرگ اور ولی اللہ کہ جنہوں نے اپنے دستے مبارک پر لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کروایا اور ایمان میں داخل کرایا۔ میں آپ کے سامنے ان کے بچپن کا ایک واقعہ پیش کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بچپن میں بھی کتنے شریف النسب اور کتنے اچھے اور کتنے اخلاق والے انسان تھے۔ آپ کے بچپن میں آپ کی جو عادتیں تھیں، بچپن میں اگر یہ عادتیں ہوں تو بڑے ہو کر جوانی میں کس طرح کی عادتیں ہوں گی اور وہ انسان جوانی میں کس طریقے سے اللہ والا ہوگا، یقیناً یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کا نام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد کا نام ابو صالح ہے۔ حضرت کے والد کا نام ابو صالح ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے والد کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے جو والد تھے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ سفر پر جاتے ہوئے انہیں بھوک کی اور پیاس کی شدت ہوئی۔ جب انہیں بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی تو ایک تالاب میں انہیں ایک سیب دکھائی دیا۔ ایک تالاب تھا، اس کے اندر سیب دکھائی دیا، پانی کے اندر بہتا ہوا آتا ہوا ایک سیب دکھائی دیا۔ تو انہوں نے بھوک کی شدت میں اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ آدھا ہی کھایا تھا سیب، اور آدھا سیب کھانے کے بعد فوراً دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ سیب میں نے اس کو بغیر پوچھے کھا لیا، نہ جانے کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اور اس کو میں نے بغیر پوچھے کھا لیا۔ فوراً دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے اور میں اس غلطی کی، اپنی غلطی کی معافی کرواتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو فوراً اس پانی کے سہارے جس طرف سے وہ پانی آ رہا تھا تالاب کا، اس پانی کے سہارے چل دیے اور یہاں تک کہ اس باغ پر پہنچ گئے۔ جب باغ پر پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے جو مالک ہیں ان کا نام ہے عبداللہ صومعی۔ ان سے ملے اور ان سے ملنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ حضرت، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، غلطی سے آدھا سیب کھا لیا ہے، اور میں اس کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے فلاں جگہ سیب کھایا تھا اور میں پانی کے سہارے آ گیا ہوں اور میں معافی کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں نے غلطی سے وہ سیب کھا لیا بھوک کی شدت میں۔ تو ابو عبداللہ صومعی جو تھے انہوں نے فوراً کہا کہ 2 شرطوں پر معافی ملے گی۔ ایسا نہیں کہ فوراً کہہ دیا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں معاف کر دیا، 2 شرطوں پر معافی ملے گی۔ اب ان کے سامنے پہلی شرط رکھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 10 سال تک، جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے، پورے 10 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ تو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فوراً مان گئے، کوئی بات نہیں۔ 10 سال تک انہوں نے بخوبی اچھے طریقے سے اس باغ کی دیکھ بھال کی، اور جب 10 سال پورے ہو گئے تو 10 سال پورے ہونے کے بعد ابو صالح عبداللہ صومعی کے پاس آئے اور کہنے لگے 10 سال پورے ہو گئے ہیں، اب مجھے دوسری شرط بتلائیے۔ ایسا نہیں کہ 10 سال پورے ہونے کے بعد یہ کہنے لگے کہ بھئی میں نے 10 سال ایک شرط پوری کر دی، 10 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اب تو آپ مجھے معاف فرما دیں اور مجھے چھوڑ دیں، ایسا نہیں، بلکہ دوسری شرط بتلائیے۔ کیونکہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر دنیا کی فکر نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ آخرت میں جب جاؤں تو بالکل پاک صاف جاؤں، کیونکہ یہاں اگر دوسری شرط پوری ہو جائے گی تو مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ معاف ہو جائے گی اور میں اس گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاؤں گا۔ اس کی فکر تھی، نہ کہ اس کی فکر کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور مجھے واپس جانا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے وہ دیکھنا ہے، ایسا نہیں۔ فوراً یہ کہا مجھے دوسری شرط بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری شرط بتلانے سے پہلے ایک سیب لے کر آؤ، میں دیکھوں تو صحیح کہ تم نے 10 سال میں صحیح سے دیکھ بھال کی ہے یا نہیں کی ہے۔ وہ گئے اور ایک پیڑ سے ایک سیب توڑ کر لائے اور عبداللہ صومعی کو دے دیا۔ انہوں نے وہ سیب کھایا اور کھانے کے بعد جب پتہ چلا انہیں تو وہ سیب بالکل پھیکا تھا۔ تو وہ ابو صالح کو ڈانٹنے لگے کہ 10 سال سیب کی دیکھ بھال کرنے کے بعد، باغ کی دیکھ بھال کرنے کے بعد تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کون سا سیب پھیکا ہے اور کون سا میٹھا۔ تو اس پر ابو صالح نے کیا جواب دیا؟ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت، آدھا سیب کھایا تھا،
मैं उसकी तलाफी के लिए यहाँ पर 10 साल इस बाग की देखभाल कर रहा हूँ। अगर उसी की सजा पूरी नहीं हुई है, अगर मैं और सेब खा लूं तो इसकी सजा कैसे पूरी करूंगा? मैं आधा सेब जो खाया था मैं तो उसकी तलाफी कर रहा हूं, अभी तो वही पूरा नहीं हुआ, और सेब खाकर मैं अपने ऊपर और बोझ डाल दूं? नहीं। उस पर अब्दुल्ला सोमई ने फिर दूसरी शर्त बतलाई कि दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। ये शर्त है, ये उनके सामने दरखास्त नहीं है, बल्कि करना ही होगा, यानी कि शर्त है। और मेरी बेटी, उसके अंदर 3 खराबियां हैं, एक वो अंधी है, दूसरे लंगड़ी है और तीसरे बहरी है। इन तीनों बातों को सुनने के बाद फौरन उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि दूसरी शर्त है। उन्हें पता था दूसरी शर्त पूरी होने के बाद मेरे ये गलती और मुझसे जो गुनाह हुआ है, गलती हुई है, इसका कफ़ारा हो जाएगा और मैं बिल्कुल पाक साफ हो जाऊंगा। फिक्र इस बात की है, न कि इस बात की कि मेरे पल्ले से एक अंधी, लंगड़ी और बहरी लड़की बांधी जा रही है। फौरन हाँ कर दी, ठीक है। निकाह हो गया, और निकाह होने के बाद जब वो अपने कमरे में गए और बीवी के सामने गए और घूंघट उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहां पर एक खूबरू लड़की बैठी हुई है, एक खूबसूरत, और ना वो अंधी है। अंधी होने का पता चल गया कि वो अंधी नहीं है, तो फौरन भागे भागे अब्दुल्ला सोमई के पास आए और कहने लगे, हजरत मुझसे फिर एक और गुनाह हो गया। कि क्या? कि मैंने किसी गैर औरत को देख लिया, किसी गैर औरत पर मेरी निगाह पड़ गई, वो तो मेरी बीवी है ही नहीं, वो तो सही सलामत है। तो अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया कि वो मेरी बेटी ही है और तुम्हारी बीवी ही है। फिर फरमाया आपने कि वो न अंधी है, न लंगड़ी है, न बहरी है। तो इस पर अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फिर आपने उसे ये क्यों कहा, मुझे ये क्यों बतलाया कि वो अंधी है, लंगड़ी है और बहरी है? तो आपने फरमाया, मैंने उसे अंधी इसलिए कहा कि उसने अभी तक किसी भी गैर मर्द को नहीं देखा। अल्लाह। लंगड़ी इस वजह से कहा कि उसने किसी भी बुरे फ़ैल की तरफ, गुनाह की तरफ या बुरे ख्याल की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाया, किसी गैर मर्द की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाया। लंगड़ी इस वजह से कहा, और बहरी इस वजह से कहा कि उसके कानों में किसी गैर मर्द की आवाज तक नहीं गई। तो अबू सालेह बड़े खुश हुए। उसके बाद आप जानते हैं कि उस पाक दामन औरत से किस हस्ती ने जन्म लिया? वो हस्ती थी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। जब माँ ऐसी हो, इतनी पाक दामन हो, इतनी परहेजगार हो, और बाप ऐसा परहेजगार हो, तो फिर औलाद कैसी होगी? आज हम अपने मुआशरे को देखें, हमारे मुआशरे के अंदर कैसा चल रहा है कि शादी हुई, शादी के सिर्फ 8 दिन हुए हैं और 8 दिन के बाद बीवी शौहर से कहती है कि 8 दिन हो गए और तुम मुझे अभी तक सिनेमा हॉल फिल्म दिखाने नहीं ले गए। ऐसे घर में ऐसी औरत के यहाँ से बतलाइए, वली पैदा होंगे या बदमाश पैदा होंगे? एक वो थी नेक दामन औरत, पाक दामन औरत और ईमान वाले मर्द, और आज हमारा मुआशरा है। तो बहरहाल शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए और आप थोड़े बड़े भी हो गए। आपकी जो बचपन का ज़माना है, बचपन के ज़माने में बचपन के बारे में, आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ इतना मिलता है कि आपका ख़ानदान जो था ये पढ़ा लिखा ख़ानदान था, पढ़ा लिखा ख़ानदान था। और आपने जो बगदाद का सफ़र किया था, बगदाद के सफ़र से पहले आपने कुरान करीम को पढ़ लिया था। अब आपने बगदाद के सफ़र पर जाने की अपनी अम्मी से इजाज़त चाहिए। इज़हार ख्याल किया कि मैं बगदाद जाना चाहता हूँ तालीम हासिल करने के लिए। बगदाद में बहुत बड़े बड़े आलिम हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मैं वहाँ रहकर उनकी सोहबत में रहकर इल्म हासिल करूँगा और पढ़ूँगा लिखूँगा। अम्मी जान ने इजाज़त दे दी, पहले मना किया फिर इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद अम्मी जान ने उनके लिए जाने का इंतज़ाम कर दिया और 40 दीनार उनके कुर्ते के अंदर, जो उन्होंने कपड़ा पहना था उसके कुर्ते के अंदर की तरफ सी दिए ताकि वो किसी को दिखे नहीं और वो खोए नहीं, खोने की नीयत से दे दिए ताकि उनके रास्ते में काम आ जाए और वहाँ बगदाद पहुँचने के बाद वहाँ जाकर काम आ जाए। साथ ही साथ अम्मी ने हजरत शेख को एक नसीहत की कि बेटा किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना, किसी भी हालत में कभी भी झूठ नहीं बोलना। झूठ की उन्होंने उनसे कहा कि झूठ नहीं बोलना। इस बात की
बड़े जोर से ताकीद की, और ताकीद करने के बाद वो वहां से चल दिए। पहले काफिला जब चलता था तो कई कई दिन लग जाते थे दूसरी जगह जाने में, फिर बीच में काफिला रुकता था, 2-3 दिन का क़याम भी करते थे, क़याम करने के बाद फिर आगे चलते थे। तो जब काफिला जा रहा था तो उसी काफिले में बीच में काफिले ने क़याम किया, और क़याम करने के बाद जब वहां से चले तो उस काफिले पर डाकुओं ने हमला बोल दिया और एक एक का सामान लूटने लगे, यहाँ तक कि सबका सामान लूट लिया। तो एक डाकू ने उस बच्चे से पूछा, जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 18 या 17 साल थी, ऐसा किताबों के अंदर लिखा है, आपके बचपन का ही जमाना था। तो डाकू ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? तो हजरत ने फौरन कह दिया मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू ने मजाक समझा कि भला इसके पास 40 दीनार कहाँ से होंगे, और अगर होते भी तो ये यूं क्यों कहता कि मेरे पास 40 दीनार हैं, बल्कि ये तो मना कर देता। चला गया। उसके बाद में दूसरा डाकू आया, उसने भी यही सवाल किया, और जब उसने भी यही सवाल किया तो हजरत शेख ने फिर यही जवाब दिया मेरे पास 40 दीनार हैं। बहरहाल आपको डाकुओं के सरदार के पास ले जाया गया। जब डाकुओं के सरदार के पास ले जाया गया और उसे बतलाया गया कि ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है, जब इससे पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या है, तो इन्होंने कहा 40 दीनार है। डाकू ने फिर वही सवाल किया, बेटा तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 दीनार है, और दिखला दिए कि देखिए अम्मी ने इस कपड़े के अंदर, कुर्ते के अंदर सी कर दिए हैं। तो डाकू बड़ा हैरान हुआ कि जब 40 दीनार कपड़े के अंदर सी दिए हैं ताकि इन पर किसी की निगाह ना पड़े, ये खोए नहीं, तो फिर मुझे बतलाने की क्या जरूरत है? तुमने छुपाया क्यों नहीं? पूछने पर ये क्यों नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है? इस पर हजरत शेख ने जवाब दिया कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा किसी भी हालत में झूठ मत बोलना, और मैं अपनी माँ का हुक्म पूरा कर रहा हूँ, उनकी फर्माबरदारी कर रहा हूँ, उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता। इस पर जो डाकू था, डाकुओं का जो सरदार था, वो हैरान रह गया और अफसोस में पड़ गया कि एक बच्चा अपनी माँ का इतनी शिद्दत से हुक्म पूरा कर रहा है, और एक मैं हूँ इतना लंबा चौड़ा इंसान, और मैं अपने अल्लाह का कितना हुक्म तोड़ रहा हूँ, कितना हुक्म तोड़ रहा हूँ। मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ और डाकू बना हुआ हूँ, लूट रहा हूँ, और ये बच्चा अपनी माँ का हुक्म पूरा कर रहा है। लिखा है किताबों के अंदर कि उस वक्त ही पूरी की पूरी टोली ने अपने फ़ैल से तौबा कर ली। जब उस सरदार ने तौबा की तो बाकी जो उसके नीचे काम करने वाले थे वो ये कहने लगे कि सरदार, जब आप डाका डालते थे हम तब आपके साथ थे, और आज आपने अपने फ़ैल से तौबा की है तो आज भी हम आप ही के साथ हैं, तो अपने फ़ैल से तौबा कर ली। तो ये था आपके बचपन का ज़माना और बचपन का वाकया। जब आप बचपन में ऐसे थे तो अंदाजा लगाइए आप जवानी में बड़े होकर कैसे होंगे। लिखा है किताबों के अंदर कि आपके दस्ते मुबारक पर कई लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो ये होती है अल्लाह के वलियों की शान, जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली जो होते हैं उन पर कोई रंज नहीं होता, कोई गम नहीं होता, वो दुनिया में भी खुश, आखिरत में भी खुश, उन्हें कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत होते हैं। उन्हें फिक्र होती है दीन की, अपने ईमान की, दुनिया की कोई फिक्र नहीं। तो ये छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश किया है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात में से। उम्मीद है कि आपको ये बहुत 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 पसंद आया होगा, और आपने इस वाक़े से बहुत कुछ सीखा भी होगा कि हमारी अपनी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हमारे अपने ख़यालात कैसे होने चाहिए, जैसा कि हमारा जो बचपन का ज़माना है वो कैसा होना चाहिए, और ख़ास तौर से हम अपनी माँ की ताबेदारी भी करें और फर्माबरदारी भी करें। यह आपने इस वाक़े से सीखा होगा। उम्मीद है आपको इस वाक़े से सबक ज़रूर मिला होगा। तो चलिए अब हम इजाज़त चाहते हैं, और अगले वाक़े को लेकर, किसी ऐसे ही सबक आमोज़ वाक़े को लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे इस तरह के सच्चे और पक्के वाक़यात, ये बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं, मिस ना हो सकता है कोई सा वाक़या सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाए, न जाने किसकी ज़िंदगी बदल जाए। इसलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।